I grew up in Christianity, and it's a different mentality, and it's more, Christianity is everything in boxes, and you're not good, and you're never going to be as good as God. And in Sanatana Dharma, we learn we are divine, and we can find a way to our divine self. And when I learned that, it made me free. I said, I have to follow this, because this is truth. So Sanatana Dharma is the truth. It's the path. I'm 58. I've been waiting to come to this since I was 20 years old. So this is a big dream to come here. I feel so excited to just, nowhere in the world can you do this. And this is so special. So I feel excited, and I know it's going to be cold, but I'm very happy to take the dip. In Sanatana Dharma, what do you special like? I grew up in Christianity, and it's a different mentality, and it's more, Christianity is everything in boxes, and you're not good, and you're never going to be as good as God. And in Sanatana Dharma, we learn we are divine, and we can find a way to our divine self. And when I learned that, it made me free. I said, I have to follow this, because this is truth. So Sanatana Dharma is the truth. It's the path. How do you feel like this arrangement of the Kumbh, how it's arranged? It's incredible. It's the organization of the Kumbh itself is amazing. The fact that just people come with so much devotion and bhav, and they want to be part of it, it's just, you want to be part of it too. So it's really amazing. My name is Lynn Walker. I'm from California, United States of America. You took a dip. You took a dip path. This is my first time at Kumbh Mela, yes. Second time to India, but first time at Kumbh Mela. How do you feel that? Oh, it's wonderful. I feel very lucky, very fortunate to be allowed to be here. This arrangement, you satisfied on Kumbh Mela? So far, it's been, an opportunity of a lifetime. In Sanatana Dharma, what do you, some word like to say? In Sanatana Dharma? In Sanatana Dharma? Well, I'm like I said, I feel very fortunate that I have been blessed to be here, and I invite all Americans, all Westerners, all Indians to come and participate in what is maybe the most important event for establishing world peace and making a change for the positive in our world. You feel lucky? I feel very fortunate. Thank you. My name is Zaria Walker, and I live in Texas in the United States. You took a dip? I took a dip this morning. We came out at about 4 o'clock, and we walked on the beach, and then we went back to our room and got our towels, and we came out here and took a nice dip with all these wonderful people. I'm going to cry. It's amazing. It's amazing to be here. God's mercy. Why you are crying? This is just such an amazing event to see so many people who are celebrating and wanting purification, wanting moksha, wanting liberty, wanting peace for all humanity. I mean, this is just an amazing thing. Only in India, only in Bharts, right? So, I don't know, what else can I say? Some words about Sanatana Dharma? About Sanatana Dharma. Sanatana Dharma. Well, when I first discovered, I was in a temple called the Temple of Kriya Yoga in Chicago 35 years ago. And I was introduced to the Bhagavad Gita. And then I have also now read some of the Srimad Bhagavatam, many of the Vedas, and I can feel in my heart that Sanatana Dharma is a good philosophy for humanity to find peace. It's really, it's moral, and it's about love, and it's about serving God, and we are missing this in our Western culture, especially. We are missing this part, and I think everybody could learn from Sanatana Dharma. What you say about Kumbh, Mahakumbh? Well, like I said, about 35 years ago, my guru, he mentioned Kumbh Mela, and I did not know what this was. But over the years, every few years I hear it's happening in India, and I thought,
This would be a nice thing. So my husband and I, we came to India in October. We did not know this was happening. We went to Parmat Niketan in Rishikesh and we saw the sign. And so then we thought we should make arrangements. And of course, as you know, it's very difficult to make arrangements because everybody already made their plans. But we got one night here at here. So being here last night, we went to RT. RT was very nice. Bajan, beautiful. Darshan, wonderful. And again, all these people here who are here to celebrate this. I heard so many things, the Ganga and the Yamuna, and my understanding is Krishna told Saraswati to hide until the time was right. This is what I have been taught. And so here we have the three rivers coming together, the vortex. I don't know, it's magical. Thank you. पहला स्नान अद्भुत स्नान। आज जब स्नान करते हुए लोगों ने जो मैंने उनके चेहरों पर जो खुशियां देखी है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। लगता है कि स्वर्ग मिल गया, पुण्य मिल गया, सब मिल गया। सब मस्त थे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव गाते हुए लोग झूम रहे थे, गा रहे थे, मस्त हो रहे थे और स्नान कर रहे थे। आंखें बंद थी लेकिन भीतर कुछ खुल रहा था, अपने राष्ट्र के लिए, अपने विश्व के लिए, शांति के लिए, मानवता के लिए। ये है स्नान, जो अपने लिए नहीं पूरे विश्व की बात करता। और दूसरी बात, मैं तो कहना चाहता हूं पौष पूर्णिमा, मुझे लगता है कि ये पानी पूर्णिमा बने। पौष पूर्णिमा पानी पूर्णिमा बने। पानी है तो प्रयाग है, पानी है तो स्नान है, पानी है तो कुंभ है। नो पानी नो कुंभ, नो पानी नो कॉन्फ्रेंस, नो पानी नो मेला। इसलिए क्योंकि माँ हमको जन्म देती है और जीवन देती है, लेकिन ये नदियां हैं ना, हमको जीविका भी देती हैं और जीवन भी देती हैं। इसलिए इन नदियों को बचा कर रखना है। जल है तो स्नान है, जल है तो पुण्य है, जल है तो दिव्यता है, जल है तो शुद्धता है, और जल है तो ये विश्व है। इसलिए आने वाले समय में जल की कमी होगी, इसका भी संकल्प लेकर जाएं, तभी ये पौष पूर्णिमा पूर्णिमा बनेगी। पूर्ण माँ ही पूर्ण होती है ना, ऐसे ही नदियां भी कम पूर्ण नहीं है। इसलिए आइए इस विश्व को पूर्ण रखना है। पौष पूर्णिमा का ये संकल्प भी कायम रखें, तभी ये नदियां सचमुच माने तो जीवित रहेंगी। वे जीवित रहेंगी तो हम जी नदियां हैं तो दुनिया है, सीधी सीधी बात है। और नदियां हैं तो कैसे हैं? नदियां जंगल की वजह से आती हैं, और जंगल कैसे बनते? पेड़ों की वजह से। तो जंगल बचेंगे तो नदियां बचेंगी, लेकिन पेड़ लगेंगे तो जंगल बचेंगे। इसलिए पेड़ लगाओ, ये संकल्प लेके जाओ। एक पेड़ माँ के नाम, भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी ने कहा, आइए उसको भी दोहराएं। एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम, भारत माता की जय। भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी जब पहले दिन आए, पूजा की 13 दिसंबर को, उन्होंने ये भी कहा कि इस मेले को प्लास्टिक फ्री, प्लास्टिक मुक्त कुंभ बनाएं। मुझे लगता है इसका आह्वान घर घर तक जाना चाहिए, जन जन तक जाना चाहिए। इसलिए हमने परमार्थ निकेतन, परमार्थ त्रिवेणी पुष्प अरैल में ये मुहिम को आगे बढ़ाया। और केवल ऐसा नहीं कि बस बात की, उसको हमने ऑप्शन भी दिए। और ऑप्शन क्या है? ऑप्शन एक ही है, और वो ऑप्शन है कि हम जैसे कोई बोतल लेके आएगा प्लास्टिक की, वहां पर एक मशीन लगा दी, पानी पी लो, लेकिन बोतल खाली करके उसमें बोतल क्रशर मशीन में डाल दो। उसके बाद उसके बगल में ही एक कियोस्क लगा दिया, ताकि वहां पर बटन दबाओ तो स्टील की बोतल आ जाएगी, उसमें पानी भरो, पानी पियो। और पानी पीने के लिए भी एक मशीन लगा दी, पी लो पानी। एक मशीन जिसमें आरओ से भी सुंदर जल उसमें है और शुद्ध जल उसमें है, और वहां से आप फ्री बिना शुल्क के बटन दबाओ, गिलास आता है, पानी पियो, गिलास का फिर उपयोग हो जाता है। ये हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर हम हर घर को ऐसा बनाएंगे, हर शिविर को ऐसा बनाएंगे, सच मानिए पूरा भारत धीरे 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 प्रदूषण से मुक्त और पर्यावरण से युक्त हो जाएगा। इतना अद्भुत है, इतना अनुपम है, अलौकिक है दृश्य। मैं नहीं, देसी तो कहते ही हैं, विदेशी भी कह रहे वाह व्हाट ए मेला, व्हाट ए कुंभ। वो मतलब चकित है यहाँ पर देखकर कि इतना बड़ा, और कहीं कोई गंदगी नहीं, सुरक्षा चारों ओर, ऐसे घूम रहे हैं जैसे पूरे अपने देशों में लगता हो कि कहीं प्रॉब्लम ही नहीं है।
तो ये जो बात है, नो केओस, नो क्राइम, नो प्रॉब्लम, ये जो भाव उनका है ना, अपने तो बोले, लेकिन जब विदेशी भी आके बोले, उनको भी लगे कि वाह क्या कमाल है। इसका श्रेय जाता है भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, और उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के एक कर्मठ योगी मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी को ये श्रेय जाता है। और उनकी पूरी टीम, सच मानो, रात दिन जग जग कर, मेला अधिकारी से लेकर एक मेला उठाने वाले तक सभी लोग इसमें लगे हुए हैं। कोई छोटा नहीं समझ रहा, सब अपनी अपनी ड्यूटी में लगे हैं, सब सेवा में लगे हैं। पुलिस वाले कहते हैं हमारा कितना भाग्य है कि हम यहाँ पर सेवा करने के लिए बुलाए गए हैं। इसलिए सेवा और समर्पण ही तो इस देश की नींव में है। तो आइए, इस मेले की भव्यता और दिव्यता को देखकर मैं इतना ही कहूंगा, अभी तो शुरुआत है। एक नई मशाल जली है संगम के तट पर, संगम बनने की और संगम बनाने की इस देश को। आइए, जो नहीं आ रहे हैं किसी कारण से, वो भी छोड़े उन बातों को। कुछ भी मन में मैल हो वो वहीं धरो, लेकिन चले आओ संगम के तट पर। राजनीति भी हो तो उसको भी छोड़ दो, राष्ट्र नीति के लिए, कि सबको लगे यार कुछ भी हो, राजनीति एक तरफ, राष्ट्र एक तरफ, उसके लिए हम आए ताकि सबको ये मिले, हाँ वो भी आया, वो भी आया, वो भी आया, ये नहीं कि वो नहीं आया, वो नहीं आया, वो नहीं आया। इसलिए आइए, सबका आह्वान, सबको निमंत्रण, करेंगे मिलकर स्नान और बनाएंगे इस देश का संगम, रखेंगे जिंदा इस देश का संगम। इसी संकल्प के साथ भारत माता की। महाकुंभ 2025 का जो प्रथम अमृत स्नान है वो आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त से शुरू हुआ है और अभी तक लगभग 1 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम क्षेत्र में स्नान किया है। जो हमारी सुरक्षा व्यवस्था, जिस तरह से हम लोगों ने प्लानिंग की थी कि हमारे जो 7 मेन रोड्स हैं जो कि प्रयागराज की तरफ आते हैं, जहां से मैक्सिमम रोड ट्रैफिक आती है, तथा 9 हमारे रेलवे स्टेशंस हैं। इसके अतिरिक्त कुछ हमारे एयर मोड से भी लोग आ रहे हैं। तो सभी चीजों की व्यवस्था की गई। जो हमने 5 लाख गाड़ियां लगाने की व्यवस्था की, वो लगभग आज 60% वो भर गई थी। और अभी भी रश संगम नोज पे चल रहा है। हमारे सारे अधिकारी वहां लगे हैं। हम लोगों ने जो व्यवस्था की थी ड्रोन से कवरेज कराने की, और अंडर वाटर वो भी ड्रोन्स हम लोगों ने प्रोक्योर किए थे। इन सभी तकनीकों का हम लोगों ने उपयोग जो पहली बार कर रहे थे किया है। और इस कुंभ का जो भव्य और डिजिटल आयोजन हो रहा है, इन चीजों के कारण आम जनता को काफी सहूलियत मिली है। और कहीं से भी प्रयागराज क्षेत्र में और पूरे प्रदेश में कहीं से भी कोई अप्रिय घटना घटने की सूचना अभी तक नहीं मिली है। और हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी वहां, जैसे ICCC के 4 ऐसे कंट्रोल रूम्स हैं। आप यहाँ खुद पुलिस मुख्यालय के कंट्रोल रूम में आप खुद देख रही हैं कि हमारे सारे अधिकारी लगातार इन चीजों को देख रहे हैं। इसी तरीके से होम कंट्रोल में है, चीफ सेक्रेटरी साहब का अपना कंट्रोल है, चीफ मिनिस्टर ऑफिस का एक अपना कंट्रोल है। तो सभी विभागों के समन्वय से कार्रवाइयां हो रही हैं। और जो हम लोगों ने पता किया है कि जो भी हमारे रोड्स जो प्रयागराज की तरफ जा रहे हैं, वहां किसी तरह का कोई ट्रैफिक का व्यवधान नहीं है। और जो रेल से हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं, उनके आने जाने की जो व्यवस्थाएं राज्य सरकार और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने की है, वो भी स्मूथली चल रही हैं। और चूंकि आज ये प्रथम अमृत स्नान था, इसमें जो भी, जब हम आज रात को बैठ के डीब्रीफिंग करेंगे, तो जो कमियां हमें नजर आएंगी हमारी व्यवस्था में, हम उसको कल के दूसरे अमृत स्नान में और व्यवस्थित करेंगे। और आने वाले जो स्नान होंगे उस दिन भी उन चीजों को लागू किया जाए। कुंभ बहुत अच्छा लगा। मोदी जी का कोई मैच नहीं कर पाएगा, योगी जी का कोई मैच नहीं कर पाएगा। हर एक चीज बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। और वी आर, my salute to Modi ji, my salute to Yogi ji. It was a very nicely programmed here. People are also coming very nicely and disciplinedly. प्यार मोहब्बत से सब लोग आ रहे हैं, कोई पॉलिटिक्स नहीं है, सब लोग श्रद्धा से आ रहे हैं, प्रेम से आ रहे हैं। मैं
इसीलिए आया हूं कि हम देख रहे हैं कि हमारे कंट्री में कितनी चेंज आई है, कैसे लोगों का व्यवहार बदला है, और वो हिंदूवत का और वो हिंदू स्पिरिट का जो एक बिखरा हुआ था हिंदुस्तान में, वो किस तरफ से और वापस मिलजुल जल ऐसा वापस वो फीलिंग आ रही है। बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं इस चीज के लोगों से। मैं इसके अलावा ये भी बताना चाहता हूं कि मोदी जी को कि आप कम से कम कश्मीरी पंडितों के लिए जो इस वक्त स्थापन में है, जो डिस्प्लेस्ड है, उनकी तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो इस वक्त बिखरे हैं, घरों में नहीं हैं। उनको एड्रेस दीजिए, उनका अपना घर दीजिए, परेशान हैं, कम से कम उनको वापस ले लिए और कश्मीर में एक जगह बसा दीजिए, एक जगह बसा दिए। और लोगों की तकलीफा देखिए, बहुत तकलीफात है लोगों को, किसी को नौकरी की परेशानी, किसी को खाने की परेशानी, किसी को रहने की परेशानी, वो उनकी प्रॉब्लम दूर किया। जैसे कि आपने सारे हिंदुस्तान में प्रॉब्लम दूर कर ली। जैसे देखो आपने हिंदुस्तान को कितना ब्यूटीफुल बनाया, आपने देखो यहाँ प्रयागराज में कितना ब्यूटीफुल बनाया, कितना अच्छा लगा। आप मैं कहता हूं कि आप आइए, हमारी जो परेशानियां हैं उनको दूर करिए, और हम साथ हैं आपके। आप हिंदुस्तान को, भारत को आगे ले रहे हैं, आप इसको साथ ले रहे हैं, तो हम आपको धन्यवाद देते हैं, मगर हमारे कश्मीरी पंडितों की तरफ से पूरा ध्यान देने की रिक्वेस्ट करते हैं। जय भारत, जय कशुभूमि।